کہ یہ ترمیم قائم رہنے والی نہیں ہے۔ ایک مضموم مقاصد کے لیے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کے بنانے والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو رات ہے یہ ختم ہونے والی ہے، سحر آنے والی ہے، اور تم لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ جو انہوں نے کر لیا، لیکن جنگ اب اس کے بعد ہے، اور انشاءاللہ فتح وکلا کی ہوگی، فتح قانون کی ہوگی اور فتح آئین کی ہوگی۔ تاریخ کی کتابوں میں دنیا پاکستانی مافیا کو یاد کرے گی۔ اس طرح سے غلط روایات جنم لیں گی اور معاشرے پہ اس کے اثرات کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان میاں فاروق عارف۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے وکلا برادری میں سخت تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وکلا برادری نے اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم موجود ہیں یہاں پر گجرانوالہ سیشن کورٹ کمپلیکس کے اندر۔ آئیے ہم جانتے ہیں وکلا برادری سے، وکلا رہنماؤں سے ان کے خیالات کا اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ صدر گجرانوالہ بار ایسوسیشن عامر منیر باغڑی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نئی آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں بھی تو میں نے، چونکہ میں ہائی کورٹ گیا ہوا تھا، سو میں نے مکمل تفصیلات نہیں پڑھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انلیگل ایکٹ اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے، اور میں اگر کوئی ایسی اس کی میلا فائڈنگ پہ مبنی اگر کوئی ترمیم ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا۔ اور اگر اس ترمیم سے کسی ملک کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ بھی میں نے پڑھی نہیں ہے 26ویں ترمیم کیا ہے، جب پڑھوں گا اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل میں۔ اچھا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ سننا ہے کہ تحریک چلانے جا رہی ہے، اگر ایسی کوئی تحریک چلائی گئی تو پھر کیا؟ جو تحریک، جو حکم ملے گا، چونکہ ہم سبارڈینیٹ آ رہے ہیں، ہم مینو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کریں گے۔ جو بھی سپریم کورٹ حکم دیتی ہے، پنجاب بار ہمیں حکم دیتی ہے، ہم اس کو ان شاء اللہ عمل کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 تقریباً 51 ایئر سے جو ہے یہی کانسٹیٹیوشن ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور اس پہ ابھی تک جو ہے یہ 26 ترمیم تھی جو کہ کل پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو پاس کی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آئین جو ہے کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ نہیں کر سکتا۔ یہ کیونکہ آرٹیکل 8 سے 28 جو ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے، اس کے اندر یہ چیز واضح طور پہ کہی گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہیں سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کو سسپینڈ کر کے یہ ترمیم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائڈ اب ایشو ہے، یہ انلیگل ہے، یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور جو سویلینز ہیں ان کے جو ٹرائل ہیں وہ سول کورٹس ہیں، آگے آپ کے سیشن کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ ہی چلنے چاہیے۔ اور دوسرا جو چیف جسٹس لگانے کی صوابدید ہے، جو اس کا کرائیٹیریا ہے، وہ بالکل بھی اس طرح سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عوامی نمائندوں کے ہاتھ میں یہ اقتدار دیا جائے یا پاور دی جائے کہ وہ آپ کے ملک کے قاضی کا، چیف جسٹس کا فیصلہ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انہیں ریویو کرنا چاہیے، اور یہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے۔ اس طرح سے غلط روایات جنم لیں گی اور معاشرے پہ اس کے اثرات کچھ اچھے نہیں ہوں گے۔ جی، میں یہ کہوں گا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپیریئر ہے، اس کو کسی بھی آئینی ترمیم کا مکمل حق ہے، لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ اگر طریقہ کار کے تحت ہو تو پھر تو اٹس اوکے، لیکن جس طریقے سے یہ آئینی ترمیم کی گئی ہے کہ بندے اغوا ہوئے ہیں، جبر، تشدد، تو اس میں یہ ہے کہ جو مداخلت ہے وہ صاف نظر آ، اور وکلا نے آج تک نہ تو مداخلت تسلیم کی ہے اور نہ عدلیہ میں مداخلت تسلیم کریں گے۔ اور انشاءاللہ قبضہ کرنا تو آسان ہوتا ہے، قبضے کو برقرار رکھنا اصل جنگ ہوتی ہے۔ جو انہوں نے کر لیا، لیکن جنگ اب اس کے بعد ہے، اور انشاءاللہ فتح وکلا کی ہوگی، فتح قانون کی ہوگی اور فتح آئین کی ہوگی۔ وکلا کیا کریں گے آپ؟ جی دیکھیں، پاکستان کی منظم ترین کمیونٹی وکلا ہے،
इंडिविजुअल तो कोई भी वकील कुछ नहीं कर सकता। हम अपनी बार्स के, फिर पंजाब बार है, पाकिस्तान बार है, जो भी मुश्तरका लाए हम लोग, लेकिन ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह जो भी होगा वो मुल्क कानून और आइन के हक़ में बेहतर होगा और इंशाल्लाह भरपूर मज़ामत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मियाँ साहब, ये जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है, इस मुल्क को इन लोगों ने क्या बना दिया हुआ है। ये पूरे मुल्क, आइनी तरमीम का मतलब होता है कि पूरे मुल्क का कंसेंसस एक चीज़ पे होना चाहिए। जिस तरह ये पिछले 2-3 माह से ये कोशिश कर रहे थे, जिस तरह ये बंदों को अगवा किया गया, जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस के साथ सलूक किया गया और उसके बाद किसी बार कौंसिल को इत्माद में नहीं लिया गया, हम वकला को इस चीज़ को इत्माद में नहीं लिया गया, हमसे ये मसवदा शेयर नहीं किया गया। ये पूरे ये 26वीं आइनी तरमीम पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मुतनाज़ा बना दी है। उन्होंने सिर्फ इस आइनी तरमीम को मुतनाज़ा नहीं बनाया, इसकी ये हरकत करके उन्होंने 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को मुतनाज़ा बना दिया है। तो मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों की और जो लोग ये कर रहे हैं उनकी ये बड़ी ही गैर माकूल हरकत है और इसका उनको ये अवाम की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। किसी सूरत भी ये तरमीम कानूनी और इसको हम इसको फेवर नहीं कर सकते। अच्छा, बस ये तो लाहिर अब वकला का क्या लाहे अमल होगा, किस तरह से इसको देख करेंगे? जी बिल्कुल, वकाला इस चीज़ पे हम लोग एक इजलास बुला के पूरे पाकिस्तान की बार कौंसल्स, डिस्ट्रिक्ट बार कौंसल्स, पाकिस्तान बार कौंसल्स, हम इंशाल्लाह ताला वकाला इसके ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक चलाएँगे और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि ये तहरीक 2007 की तहरीक से ज़्यादा मौसर होगी और पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम को बचाने के लिए वकला पहले भी मैदान अमल में आए हैं और इस दफ़ा भी हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको महाज में लेके इसकी डट के मुखालफत करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसे आइनी तरमीम को अंडू करवाएंगे। मैं सबसे पहले तो इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि ये जो तरमीम पास की गई है और जिस कदर जल्दी में पास की गई है और इससे जो हमारे बुनियादी कवानीन, जो बुनियादी हकूक़ थे वो सलब किए गए हैं और अपने मन पसंद के जो जजेस तैनात करने की साजिश की गई है, मैं इसकी बतौर वकील भरपूर मजम्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये तरमीम कायम रहने वाली नहीं है, क्योंकि ये ख़ास एक मज़मूम मकासद के लिए पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलने के लिए बनाई गई है और ये जल्दी अपनी मौत आप मर जाएगी। और उसके बनाने वालों को ये पैगाम देता हूँ कि ये जो रात है ये ख़त्म होने वाली है, सहर आने वाली है और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ना हमारे पास वो मसवदा है और जितने भी लोग राय ज़री कर रहे हैं उनकी आपस में राय इसलिए नहीं मिलता कि किसी ने उसको ना देखा है ना पढ़ा है, ना हमारे पास उसकी कोई कॉपी है। तो मीडिया के ज़रिए हम जो पढ़ते हैं या सुनते हैं वही बार बार रिपीट कर देते हैं। मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा क्योंकि आप मेरे अलावा और कई लोगों का इंटरव्यू कर चुके होंगे। तो मैं इतना ये समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम अदारा है, उसको जो कदगन लगाना एक और अदारा बना के उसके इख्तियारात को महदूद करना ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं। तो क्या पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है? पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन आप देखते हैं कि पार्लियामेंट को किस तनाज़र में, किस सूरत हाल से किस तरह वो तरमीम की जा रही है। ये अगर फेयर है तो फिर ठीक है, अगर फेयर नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। ये होनी चाहिए थी इसलिए कि अदालतों में लोड बड़ा पड़ गया था, केसेस बहुत ज़्यादा थे और ये जो है ये तंजीम से अब जो है ना वो लोड कम हो जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से ये इसका होना बहुत ज़रूरी था और ये खुशाइंद बात है कि ये तो हमारे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने जो विजन दिया है उसके मुताबिक ही सारा कुछ हुआ है। ये पहले ही हो जानी चाहिए थी, वो ज़रा लेट हुई ज़रा। अच्छा, इस तरमीम में एक चीज़ ये भी है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस का जो है अनाउंस करेगी, क्या ये दुरुस्त है? दुनिया में जहाँ भी जाए ना पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है, तो जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें पार्लिमानी नुमाइंदों का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है। देखिए,
26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से आइन में क्या तब्दीली की गई है, इसको मैं नहीं छेड़ता इस बात को, उसकी तफसीलात इंशाल्लाह फिर किसी वक्त। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखना ये पड़ेगा कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ये किन हालात में हुई है, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी क्या ज़रूरत थी भी कि नहीं थी। लेकिन अगर मैं मुख्तसर तौर पे कहूँ तो बज़ाहिर हालातों वाक़यात और टाइमिंग से लगता है कि जो मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने इस तरमीम के ज़रिए से वो जो सवाल किया करते थे ना, मुझे क्यों निकाला, तो दरअसल उन्होंने उसका जवाब दिया है उस इदारे को कि मुझे क्यों निकाला। और उसके बाद जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने भी कहा कि जी उन्होंने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं। तो काला सांप किसको उन्होंने कहा है? सीधी सी बात है, वो तशबीह जो है वो जिस इदारे की तरफ है जिसका यूनिफॉर्म या लिबास काला है उसकी तरफ वाज़ेह इशारा है। तो ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये दरअसल उसकी आप जितनी मर्जी उसके ऊपर उसको शुगर कोटेड कर लें, उसकी उसमें वो सूद के हवाले से मजहबी टच भी दे लें, लेकिन ये आपके कहने का मकसद है मौलाना फजल रहमान साहब ने बुकला को और अदलिया को, जुडिशरी को हिट किया है। सिंपल सी बात है कि हमारा देखें, हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि शायद हमारे जो मुक़्तदर लोग हैं उन्होंने कसम उठा ली है कि किसी भी इदारे को अपनी असल हालत में रहने नहीं देना। वो कहते हैं एक मुहावरा है कि हर के आमदे 9 इमारतें 9 साख। यहाँ पे इमारतें 9 साख नहीं होती, बल्कि जो पहले से मौजूद इमारतें हैं उनको गिराया जा रहा है, उन इदारों को ढाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट पे बाज़ाब्ता हमला हुआ था, कुछ MNAs के थ्रू एक पार्टी ने किया था, सबको पता है उसकी हिस्ट्री का। तो बज़ाहिर जो हालात वाक़यात हैं, जो टाइमिंग है, उससे तो यही लगता है कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट पे एक हमला हुआ है। हाँ, लेकिन ये आइनी तरीके से हमला हुआ है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं कि देखें सुप्रीम पार्लियामेंट जो सुप्रीम है, लेकिन उस सुप्रीमेसी के पर्दे में अगर कोई बदनिश्ती से कानून साजी या आइन साजी होगी तो वो महसूस तो होगी। अब लोग देख रहे हैं कि इस तरह से रात के 12-12 बजे जो है वो इजलास करके इतना एमरजेंसी में आइन में तब्दीली आखिर की जा रही है। तो क्यों? ये जो क्यों है इसका जवाब भी लोग जानते हैं कि क्यों किया गया है। वो कुछ शख्सियात का रास्ता भी रोका गया है ताकि वो सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस ना बन पाएँ, जो बज़ाहिर महसूस हो रहा है। इसके अलावा कुछ इदारों को उनकी एक हदबंदी करने की कोशिश की गई है और अल्टीमेटली इसका बज़ाहिर इस तरमीम का जो है वो फ़ायदा जो है वो तो कुछ ख़ास ना होगा, लेकिन इसके जो बुकला क्या करेंगे, बुकला क्या करेंगे? देखिए, वकला क्या करेंगे इस हवाले से, चूँकि एक चीज़ जो है वो पेशबंदी के तौर पे जो सीनियर वकला क़यादत या जो कभी क़यादत होती थी उसको पहले से ही कंट्रोल किया जा चुका है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़, हाँ अगर कोई शायद तहरीक चल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है। देखिए, आज के हालात जो भी हों, मुमकिन है कि अगले किसी वक्त में इस तरमीम को मनसूख किया जाए। अगर एक जो पार्लियामेंट है वो कोई तरमीम कर सकती है तो कोई नई आने वाली जो पार्लियामेंट है वो उसको मनसूख भी कर सकती है। तो अल्टीमेटली जो बज़ाहिर है, जो महसूस हो रहा है, वो यही है कि एक सियासी जमात जो है उसका रास्ता रोकने के लिए, और चूँकि वो खदशा था, ये आम तौर पे मशहूर था कि जी फ़लाँ जो है वो चीफ जस्टिस आएंगे तो शायद इलेक्शन जो है वो उसकी सारा प्रोसेस जो है उसको दोबारा से देखा जाएगा, फॉर्म 45-47 वाले मामला देखे जाएंगे। तो जिन्होंने वो सारा कुछ किया हुआ है वो खुलने तो नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, ये एक ना गैर आइनी काम है, ठीक है। जमहूरियत को इन्होंने मजबूत करने के बजाय एक और स्टेप नीचे कर दिया है। पहले इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो थी हर काम में पहले आगे थी, आप देखें ब्लैक वीगो डाले में हमारे सारे सैनिटर आ रहे हैं, देखें कोई पूछने वाला नहीं। पहले जो इमरान खान का एक काम सबसे ख़ास ये किया उसने कि इसने सबको नंगा किया, ठीक है। इसका हाल तो यही था कि आप जमहूरियत को प्रॉपर करते, अपनी मर्ज़ी से देते, वो भी हक नहीं दिया। अब सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस रह गई है इस मुल्क में। हम तो खुद सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम बुकला हो के सोच रहे हैं, और वो बुकला को भी मैं पैगाम भेजना चाहूँगा जो कहते थे बुकला जिंदा है। मुझे लगता है मर गए हैं हम सब, और ना आज एहतजाज होना चाहिए था। हमसे सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में दे दिए गए हैं, तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? हम इसका तो यही हाल था कि अब हम इन पे फातिहा पढ़ दें अपने निज़ाम पे। अब इनकलाब आए लेकिन वो भी नहीं आना, क्योंकि हम ना मार खाने के आदी हो चुके हैं। इसके हवाले से मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा इंतहाई जामे अल्फाज में कि ये एक ऐसी तरमीम है जिसके मुताबिक चोर और डाकू अपने मुतलका थाने में अपनी मर्जी का SHO लगवा सकेंगे। इसकी तशरीह से बेहतर मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकती
کہ जुडिशल सिस्टम का जो है ना आज रात 2 बजे जनाजा पढ़ा गया है, इसके इतने ज़्यादा दूर रस नुकसानात होंगे कि कौम का एतमाद सिस्टम से उठ चुका है और जो है ना कौम की बेहतरी की उम्मीदें कि मुल्क में कुछ बेहतर होगा वो नज़र नहीं आ रहा। किसी न किसी हद तक इंसाफ के लिए लोग एतमाद करते थे, अदालतों में आते थे। अब एडवांस ही पता है सबको कि फ़लाँ जज के पास केस लगेगा तो उसका फ़ैसला ये होगा, फ़लाँ जज के पास लगेगा तो इसका फ़ैसला ये होगा। लेकिन अब तो इससे भी बढ़ के बात हो गई है कि जज ही एक तरफ के होंगे, दो तरफा बात तो ख़त्म होगी। पहले तो फिर कह लेते थे ना, अब सारे ही वही होंगे। इसलिए जो है ना कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाना भी जो बंदा उस माफिया के ख़िलाफ़ है या मुखालफत करता है उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता, वो अदालत में जाएगा ही नहीं। वो सिसिलियन माफिया वाली बात ख़त्म हो चुकी। अब तारीख़ की किताबों में दुनिया पाकिस्तानी माफिया को याद करेगी। देखें जी मेरे भाई, आइनी तरमीम करना या किसी भी कानून में तरमीम करना या कोई नया कानून बनाना, ये पार्लियामेंट का राइट है, उनका काम यही है। उनको हम अपने वोटों से इसीलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो कानून को वक्त और हालात के मुताबिक नया कवानीन बनाएं, या जो पहले से मौजूद कवानीन हैं अगर उनमें किसी तरमीम की ज़रूरत है तो उसको हालात के मुताबिक और इंसाफ की खातिर अमेंड किया जाए। तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। ये पार्लियामेंट ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, तो इससे जमहूरियत मजबूत होगी। तो मुझे तो कोई अच्छा, खास इसमें ये बता दें, एतराज़ इसमें नहीं जो है। एक शिक लिखी गई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नॉमिनेट करने का उसको इख्तियार दिया। क्या इससे वकला अदलिया के हकूक़ सल्ब नहीं हुए? देखें, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जो 3 सीनियर तरीन जजेस होंगे उनमें से किसी को सिलेक्ट करेगी। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, अमेरिका में भी ऐसे ही होता है, बरतानिया में भी ऐसे ही होता है। हुकूमत को ये इस्तेहकाक दुनिया के दीगर जमहूरी मुल्कों में हासिल है। तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटी को ही राइट नहीं है, इसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और वकला के नुमाइंदे भी बैठेंगे और सब लोग मिल बैठ के करेंगे। मेरे ख्याल में तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है।